Namaskar, welcome to Fundamentals of Computer classes. In first period, we have learnt about the what is the computer and what are the main functions of the computer. In this session, we'll learn the four famous types of computer. There are four famous types of computers that are desktop computer, what we conventionally used in the offices, laptop computers, what today professionals and students are using, tablet computer. Many professionals and students are using tablet computers, and mobile computer. Mobile is used by every person, almost every person, right from the child to the old person. Everyone is using mobile. So as on date, everybody is having more or less computer literacy. Desktop computers are those type of computers and have a screen, keyboard, mouse, speaker. These all are separate. We can see this image. Here screen is this one. This is CPU, this is keyboard, and this is mouse. So all are separate. They are used to working and on office computer documents like spreadsheets, presentation, etc. When we come to laptop, you can see this is the image. These are the images of laptop. Laptops have less memory capacity than desktop computers, but they also come with more ports. ऐसा कहा जाता है कि लैपटॉप में डेस्कटॉप की तुलना में कम मेमोरी होती है, लेकिन उनमें पोर्ट आते हैं और उस पोर्ट के द्वारा आप उसकी मेमोरी भी बढ़ा सकते हैं, उसका स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं. लैपटॉप्स आर कॉमनली यूज्ड बाय पीपल हु ट्रैवल अ लॉट as they can easily connect to other devices such as mobile phone or tablets. नॉर्मली लैपटॉप उन्हीं लोगों के द्वारा यूज किया जाता है जो जर्नी वगैरह ज़्यादा करते हैं. और जर्नी में क्या होता है कि मोबाइल से भी उनमें इंटरनेट यूज किया जा सकता है, चार्जिंग भी किया जा सकता है, हैंडलिंग जो होता है आराम से होता है, किसी भी बैग में इसको रखा जा सकता है. आजकल तो 3 लैपटॉप आ रहे हैं, बहुत ही पतले लैपटॉप आ रहे हैं. They usually run on the Windows operating system, which is one of the most popular system in the world. लैपटॉप्स जनरली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं. Tablet computers can be very useful for those users who don't need to use their computers for any purpose other than browsing the internet or working on the computer. कहने का मतलब ये हुआ कि if you want only clicking here and there, just browsing and little bit typing, then tablet is sufficient. Only browsing, clicking here and there, just checking the internet data, checking the internet sites, different sites, mails, social medias, and some little bit typing. So only clicking, browsing, and little bit typing is required, then tablet is sufficient. अगर सिर्फ आपको थोड़े मोड़े टाइप करने हैं और ब्राउजिंग करना है, नेटवर्क ब्राउजिंग करना है, तो इंटरनेट ब्राउजिंग और टाइपिंग के लिए टैबलेट अच्छा सुझाव है. Some tablets have touch screens that allow users to operate them using only fingers, while others may be operated using physical buttons. आजकल लगभग सभी जो टैब है वो टच स्क्रीन ही है, और टच करते ही सारे आइकन आ जाते हैं, और उस आइकन के अनुसार जो भी आपकी जरूरतें हैं उसके अनुसार आप उसको क्लिक करके प्रोसेस कर सकते हैं. टैबलेट पीसीस also provide different functions that laptops do not provide. बहुत से ऐसे peculiar features tablets में होते हैं जो लैपटॉप में भी नहीं होते हैं. Mobile computers are a type of microcomputers. Today almost everyone is using mobile computers are very small, so that you can use mobile phones anywhere. ये जो आप इमेज देख रहे हैं, this is the mobile, और इसमें एक सिम लगता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम लगता है, और उस सिम से ये ऑपरेट करता है. और ये आपके लिए एक माइक्रो कंप्यूटर है. आज के डेट में ये मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं. शायद ही कोई ऐसा होगा जो मोबाइल से अनजान है. अगर कोई अनजान है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. जनरेशन की बात जब आती है, जनरेशन का मतलब ग्रोथ.
कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर का, जो आज की डेट में हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, क्या ऐसे ही पहले थे या पहले दूसरे तरीके के थे। तो अभी हम 5th जनरेशन की चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन जो है 1940 से लेके और 1956 तक है, और उस समय वैक्यूम ट्यूब होते थे। जी हाँ, उस समय जितनी भी मशीन चलती थी वो पहले वैक्यूम से चलती थी, स्टीम से चलती थी। शिप स्टीम की होती थी, ट्रेन स्टीम की होती थी, जितने बड़े बड़े कारखाने चलते थे, फैक्ट्री चलती थी, सब स्टीम से चलते थे। तो उस समय का जो कंप्यूटर बना था, एनालॉग कंप्यूटर, वो भी वैक्यूम ट्यूब से ही चलता था। सेकंड जनरेशन जो है 1956 से 1963 तक, और इसमें ट्रांजिस्टर का आना शुरू हुआ। ट्रांजिस्टर के आ जाने से कंप्यूटर का जो है आकार छोटा होने लगा, और अदरवाइज वैक्यूम टाइम में 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम बना कर भर करके एक कंप्यूटर बनाया जाता था। इतना स्पेसियस होता था। एक कंप्यूटर रखने के लिए 2-3 रूम की जरूरत पड़ती थी वैक्यूम ट्यूब के जमाने में। जब ट्रांजिस्टर आए तो थोड़े से कमी हुई जगह की। थर्ड जनरेशन जो है 1964 से 1971 है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आईसी है। इंटीग्रेटेड सर्किट के आने से ही कंप्यूटर की दुनिया में जैसे भूचाल आ गया, वो क्रांति आई जिसकी किसी ने कल्पना तक ना की होगी। आईसी आने से, इंटीग्रेटेड सर्किट आने से, जो डिवाइस इतने बड़े बड़े रखे जाते थे वो सब इतने छोटे छोटे हो गए। इतनी छोटी सी चिप में सब कुछ। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसके आने से कंप्यूटर में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और उसी के, ये आईसी के बदौलत ही आज हम मोबाइल यूज कर पा रहे हैं, टैब यूज कर पा रहे हैं, लैपटॉप यूज कर पा रहे हैं। फोर्थ जनरेशन 1972 टू 2010, इससे पहले वाला जो सीआरटी वाला टीवी हम रखते थे, सीआरटी वाला मॉनिटर जो हम रखते थे, वो जो है फोर्थ जनरेशन का जमाना था, और उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगते थे। मतलब कहाँ हम 2-3 रूम में रखने वाले कंप्यूटर, कहाँ छोटे छोटे कंप्यूटर, और कहाँ एकदम सीपीयू में आ गए हम। उसके बाद से 5th जनरेशन 2010 ऑनवर्ड्स अभी चल रहा है, और इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट चलते हैं, रोबोट सारे काम आज के डेट में कर रहे हैं। रिमोट से सारे काम आजकल हो जाते हैं, ड्रोन से सारे काम हो जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जमाना है। जिनकी भी पकड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, आज के दिन में ज्ञान के वो धनी व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से आज हम 5वें जनरेशन में जी रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में स्टोर डेटा तक ही सीमित था। सेकेंड जनरेशन में डेटा स्टोर भी किए और प्रोसेस भी किए। थर्ड जनरेशन में स्पीड ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इसको बोलते हैं MIPS। जब भी हम प्रोसेसर का स्पीड पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है MIPS, मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड भी होता है। तो ये प्रोसेसर का स्पीड होता है। जब फोर्थ में आए, अनलिमिटेड स्टोरेज डेटा कैपेसिटी अपने आप बढ़ गया, और 5th जनरेशन में तो हर चीज एडवांस टास्क से हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रादुर्भाव जो हो गया है। तो इस तरीके से इस सेकेंड सेशन में हमने कंप्यूटर के टाइप के बारे में भी जाना, और कंप्यूटर का इवोल्यूशन के बारे में भी, उनके पिताजी के पास से भी लेकर के आए, कहाँ से कंप्यूटर शुरू हुए और आज कहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसके बारे में हमने जाना। ये एक इलेक्ट्रॉनिक जर्नी है, और यहाँ पर हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं, उन्होंने उनके अथक परिश्रम के सहारे ही आज हम माइक्रो कंप्यूटर तक पहुंच गए हैं। हमें भी प्रयास करना चाहिए कुछ न कुछ नए करने के लिए, और इसके लिए सीखना जरूरी है। सो प्लीज कीप ऑन लर्निंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।